Radhe Radhe childrens. Today this is our first lecture for 9th standard. Now in 9th standard, see, syllabus is quite good syllabus. Some new things has been introduced to you for this year. For an examples, theorems, then riders, these are all new things which are being introduced to you. Moreover, your whole textbook is in R2, that is 2 dimension. Now we are selecting today chapter number 3, that is coordinate geometry for you. Now see, this chapter number 3 is most interesting and most easiest chapter of your text. Now what does this chapters want to tell? First of all, I always tell, if you understand the meaning of the name of the chapter, then the chapter itself becomes very easy for you. आपको अगर चैप्टर का नाम का मतलब समझ में आ जाता है तो चैप्टर आपके लिए बहुत इजी चैप्टर हो गया. जैसे हम एक सिंपल वर्ड यूज करते हैं, को-ऑर्डिनेट जियोमेट्री. इसको अगर हम 4 पार्ट में कर देते हैं, को मीन्स टुगेदर, ऑर्डिनेट्स का मतलब होता है नंबर, जियो का मतलब है अर्थ, और मेट्री का मतलब होता है मेजर. टुगेदर नंबर्स, अर्थ, मेजर, ये इस चैप्टर का नाम हुआ, मतलब मीनिंग हुआ. अब हम सबसे पहले इस वर्ड को इंपॉर्टेंस देते हैं, कोऑर्डिनेट. अब कोऑर्डिनेट मतलब टुगेदर नंबर. अभी तक आप लोगों ने अपने 8th स्टैंडर्ड तक सिंगल नंबर्स पढ़े हैं, जैसे कि हम उसे मैथ्स इन R1 कहते हैं. R1 का मतलब होता है रियल नंबर लाइन. दैट इज, मैं इसको और इजी फॉर्म में लिख देता हूं, पूरे लिख देता हूं. R1 का मतलब होता है ऑन नंबर लाइन. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आता है x इज इक्वल टू 2. अगर आपको x इज इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट करना है तो आप नंबर लाइन ड्रॉ करते थे. यहाँ लिखते थे 0, 1, 2, 3 और यहाँ पे एक मार्क कर देते थे. दिस वॉज x इज इक्वल टू 2. नाउ if you have, I am taking one more example, x is equals to -3. If x is equals to -3, we used to write 0 on right hand side, then -1, -2, -3, -4, -5. Where -3 was there, हम उसे लिखते थे x is equals to -3. So this was on number line. ये R1 में कहा जाता है. This is known as maths in R1. Now maths in R2. R2 maths, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे भी, ऐसे भी, और R क्रॉस R ऐसे भी. जब आप इसे R क्रॉस R लिखते हैं या R2 लिखते हैं, तब इसका मीनिंग होता है कि ये हो गया कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट का मतलब है यहां पर आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक x वेरिएबल और अनदर इज y वेरिएबल. दिस इज बीन रिप्रेजेंटेड लाइक x, y. So this is basically known as coordinate. Now this has been represented on graphs. You can also represent this on simple paper because it is basics for you. Now we shall learn about Cartesian coordinate axis. So Cartesian coordinate system. Now what is this Cartesian coordinate system? You remembered previously we used to draw the graph. I'm writing the points here. 2 perpendicular lines. lines
intersecting at a point. Two perpendicular lines intersecting at one point. Now, these two lines are known as, one as x-axis and another as y-axis. One is known as x-axis, whereas another is known as y-axis. Horizontal line, the horizontal line is known as x-axis, whereas is called x-axis, whereas vertical line is called y-axis. X-axis and y-axis. Now, this is also defined as, if I write this as x-axis, this is x dash. If I write this as y, then this is y dash. So in bracket, we can write this as x dash axis and this as y dash axis. Now, intersection point of lines is called origin, which is represented by 0, 0. I can also say O, I'm rubbing this, represent as O, 0, 0. So here I write O, 0, 0. Now again we will recap this. See, two perpendicular lines intersect at a point. Now you can see these are two perpendicular lines which are intersecting at a point. Horizontal line is called x-axis. This is a horizontal line which is known as x-axis. It is also known as x dash axis. Similarly, vertical line is known as y-axis. It is also known as y dash axis. Now, intersection points of this line. Intersection point of this line like this. इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाला, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसे हम क्या कहेंगे? ओरिजिन. दिस इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइन इज नोन एज ओरिजिन. नाउ दिस, व्हेन यू ड्रॉ दिस टू लाइंस, टू परपेंडिकुलर लाइंस, तो अब आपका जो प्लेन है वो चार पार्ट में डिवाइड होता है. तो अब किसी भी चीज को अगर चार पार्ट में डिवाइड होता है तो फोर्थ पार्ट इज नोन एज क्वार्टर. आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, आधे को हम हाफ बोलते हैं और फोर्थ पार्ट को हम क्वार्टर बोलते हैं. तो अब जब हर एक पार्ट हुआ, जैसे ये 1, 2, 3, 4, इन्हें कहा जाता है क्वाड्रंट्स. सो हियर आई एम राइटिंग क्वाड्रंट्स. तो आपके पास यू आर हैविंग 4 क्वाड्रंट्स. अच्छा, अब हर बार क्वाड्रंट्स के अंदर वी मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो नंबर मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब यहां से शुरू करना है और इस तरह से आपको आना है. इसे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं. घड़ी आपकी ऐसे मूव करती है, टिक 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 टिक. अब हम यहाँ घड़ी मूव कर रहे हैं पर उल्टी घड़ी कर रहे हैं. तो टिक जो होता है, देखो टिक होता है, तो ये हो गया किट 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 किट. तो यहाँ पर हम याद रखेंगे कि हमारा जो क्वाड्रेंट का मोशन है वो कैसा है? किट 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 किट. दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. Okay, now this is known as first quadrant. This is known as second quadrant. This is known as third quadrant. And this is the last, that is fourth quadrant. अब हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं क्वाड्रेंट्स को? तो देखिए 1, 2, 3, 4. यहां मैं लिखता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट.
फर्स्ट क्वाड्रेंट का मेरा मतलब है एंगल मेरा बनता है एक्स ओ वाई, एंगल बनता है एक्स ओ वाई। सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा एंगल बनता है एक्स डैश ओ वाई, यहां बनता है एक्स डैश ओ वाई डैश, और यहां पर बनेगा एक्स ओ वाई डैश। तो यहां पर मेरे चार एंगल बनते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बनता है एक्स ओ वाई, सेकंड में एक्स डैश ओ वाई, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स डैश ओ वाई डैश, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स ओ वाई डैश। नाउ इफ आई पुट्स द कोऑर्डिनेट्स हियर, अगर मैं यहां पे कोऑर्डिनेट रखता हूं तो सपोज मैं आपको एक बहुत इजी टेक्निक सिखाता हूं कोऑर्डिनेट्स की। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोऑर्डिनेट होते हैं वो दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि यहां भी x है और y है उसके बीच में है, तो ये हो गए पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। पहला x और दूसरा y, बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आता है, उसमें x नेगेटिव होता है मगर y पॉजिटिव होगा। थर्ड के अंदर दोनों नेगेटिव, और फोर्थ के अंदर x पॉजिटिव y नेगेटिव। इसके लिए हमने एक गाना बनाया है, अगर आप इसे याद रखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम बोलते हैं प प प। सेकेंड क्वाड्रेंट को बोलते हैं न प न प। थर्ड क्वाड्रेंट को बोलते हैं हम न, और फोर्थ क्वाड्रेंट को बोलते हैं हम प न। तो गाना ऐसे बनता है प प न प न प न, प प न प न प न। मेरे साथ रिपीट कीजिए एक बार, प प न प न प न। आप लोग अपने घर पे मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं वंस अगेन, प प न प न प न, प प न प न प न, प प न प न प न। यानी इतना याद रखोगे तो आपको क्वाड्रेंट्स याद रहेंगे। पहले आया प प यानी फर्स्ट, न प सेकंड, न थर्ड, और प न यानी फोर्थ। तो ये आपके फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब हम एक और चीज की बात करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। जैसे हियर वी आर राइटिंग टू कोऑर्डिनेट्स, सपोज मैं यहां पे लिखता हूं ए और बी, ए और बी। तो ये जो ए कोऑर्डिनेट है दिस इज ऑफ एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे ही आएगा। कैसे रखना है हम सिखाएंगे। और ये जो बी कोऑर्डिनेट है ये y एक्सिस पे ही आएगा। दूसरा, इनके कुछ अमेरिकन नाम भी हैं, अमेरिकन समझो, इजिप्शियन समझो, जर्मन समझो, मतलब मैथमेटिकल नेम, एक्चुअली मैथमेटिकल नेम फॉर एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस। यानी मैं इसको अब और अच्छा नाम देता हूं, इसको हम बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, और इसको मैं बोलूंगा y coordinate. X coordinate is also known as abscissa. It is known as abscissa, and y coordinate is known as ordinate. Ordinate. Always remember this. This is most important. GM. GM का मतलब होता है बेटा गुरु मंत्र। जैसे आज तक आपको टीचर्स बोलती थी LBH, लर्न बाय हार्ट, पर मेरे को तो ऐसा पता है कि हम हार्ट से तो कभी लर्न करते ही नहीं थे, हम तो ब्रेन से लर्न करते थे। तो हमें लिखना चाहिए था लर्न बाय ब्रेन, LBB, बट हम LBB नहीं लिखते हैं, हम तो आज भी LBH लिखते हैं। तो हमने थोड़ा उसको थोड़ा पीछे अपने मॉडर्नाइज फॉर्म में कर दिया उसे, इसलिए हम अब कभी भी हम LBH न लिखते हुए आई ऑलवेज राइट इट एज GM। GM का मतलब रहेगा गुरु मंत्र। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स A and B, where A is known as X coordinate and B is known as Y coordinate. X का नाम होता है एब्सिसा और Y का नाम होता है ऑर्डिनेट।
अगर आप चाहें तो यहां पर भी ये इसको बता सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ पॉजिटिव यानी प, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव पॉजिटिव यानी न प, दिस इज न एंड दिस इज पन. I am again speaking papa na pa na na pan, papa na pa na na pan, papa na pa na na pan. आप म्यूजिकल भी गा सकते हो, papa na pa na na pan, papa na pa na na pan. This is a musical theme, so you can learn by this. This is your first part and theory of your coordinate geometry. Children, now we are supposed to do exercise 3.2. Now in this exercise 3.2, question number 1 is given, write the answers. Now their first question they have asked you, what is the name of horizontal and vertical line? Horizontal line and vertical line. In theory we have already taught you that horizontal line is known as x-axis. It is also known as x dash, and vertical is known as y axis, which is also known as y dash. Second question they have asked you, what is the name of each part of the plane formed by these two lines? I told you when these two lines are drawn, they are divided into 4 parts, which is known as quadrants. So that all parts are known as quadrants. Your third answer, write the name of point where these two lines intersect. That also we have written in theory. These two lines intersect each other at a point O, which is known as origin. It is known as origin. So now these are your 3 answers. Now question number 2. Here they have given to you, see and write the following. See and write the following. So in this we are having 8 questions. 3, 4, 5, 6, 7 and 8 questions are there. First they have asked you co-ordinate of B, next co-ordinate of C, third identify the point -3, -5, fourth question the point of identify point 2, -4. Fifth number, abscissa of D. Sixth, ordinate of H. Next, co-ordinate of L, and this coordinate of M. These are the 8 questions to you. Now before going towards these 8 questions, what we do, we are having one diagram with us. Now in this diagram, by seeing these all things, we will first of all plot the points. Now when you plot the point, always you are supposed to see x-axis first and then y-axis. I'll start with first quadrant. See, first quadrant D is there. अगर मैं x-axis देखता हूं तो x-axis पे पॉइंट कहां पे आया 6 पर, और y-axis पे पॉइंट कहां पे आया 2 पे. तो ये D कोऑर्डिनेट हो गया आपका 6,2. यहां पे L देखिए, L. अच्छा, अब ये पॉइंट एक्सिस पर ही है, बिकॉज दिस पॉइंट इज ऑन एक्सिस. और कौन सी एक्सिस पे है? y एक्सिस पे. तो y पर है तो x कोऑर्डिनेट 0 हो गया और y कोऑर्डिनेट इसका 5 हो गया, क्योंकि x एक्सिस पे नहीं है, ये ऑन द लाइन है.
तो ये उसी का पॉइंट रखा जाएगा. नाउ इफ आई कम टू सेकंड क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट आई सी बी. तो यहाँ पे आया -5 एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस पे आया मेरे पास -2. सॉरी, इट इज 2. तो माई पॉइंट इज -5, 2. नाउ इफ आई सी एम, द एम पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस. कौन से पॉइंट पे? -3 पे. तो ये तो हुआ -3, पर यहाँ पे y कुछ नहीं है, तो y हो गया 0. y इज 0. h यहां पे आया h पे. तो अगर आप देखते हैं h पे भी पहले x एक्सिस पे गए तो इट इज -5 और यहां पे आए तो -3. सेम वे दिस इज -3, दिस इज -5. इफ आई कम टू फोर्थ क्वाड्रेंट G, फर्स्ट आई सी ऑलवेज x एक्सिस. तो यहां पे है 2, यहां पे है -4 और यहां पर अगर आप देखोगे तो दिस इज 5 and this is -5. So this is my coordinate. Now with the help of this I could write the answers for this. पहले coordinate of B, अगर आप ध्यान से देखो तो इसका आंसर आएगा -5, 2. अगला है coordinate of C, ये रहा. तो आंसर इज 5, -5. आइडेंटिफाई -3, -5. तो -3, -5 कौन सा है? E कोऑर्डिनेट. तो आंसर इज E. 2, -4. 2, -4 ये कौन सा है? तो दिस इज G. एब्सिसा ऑफ D. तो पहले तो आप इसमें से D ढूंढेंगे, D ये रहा. और एब्सिसा मतलब सिर्फ x कोऑर्डिनेट. तो योर आंसर इज 6. ऑर्डिनेट ऑफ H का ऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट. तो आंसर आया आपका -3. कोऑर्डिनेट ऑफ L के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 5 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ M, अगर आप M के देखेंगे तो ये हुआ -3, 0. सो दिस इज योर एक्सरसाइज 3.2. Children, if you like this video, please give like on our YouTube channel, subscribe it and forward to as many as students is it possible. Your comments are valuable for us. Radhe Radhe.